pray and then we'll go into the word. तो हम प्रार्थना करके वचन में जाएंगे। Dear Heavenly Father, प्रिय स्वर्गीय पिता, we thank you हम धन्यवाद देते हैं because you are so good. क्योंकि आप बहुत भले हैं। Thank you, Father, धन्यवाद पिता that you loved us with an everlasting love. कि आपने हमसे अनंत के प्रेम से प्रेम किया है, That your thoughts towards us are continuously for our good, for our prosperity. कि आपके विचार निरंतर हमारे भले और हमारी उन्नति, हमारी समृद्धि के विषय में है। So Father, we praise you. इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, we thank you हम आपका that you धन्यवाद are the देते हैं Spirit of truth. कि आप सत्य की आत्मा हैं। You are the revealer of God's word. आप परमेश्वर के वचन को के भेद को हम पर प्रकट करते हैं। So Lord, here we are. इसलिए आपके सामने हम मौजूद हैं प्रभु। We say, talk to us. हम कहते हैं हमसे बात करें। Let this word ये वचन be for me. मेरे लिए हो, Let this word ये वचन be for my family. मेरे परिवार के लिए हो, Let this word ये वचन be for my generations to come. मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए हो, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। Come on, open your Bible to a passage of scripture. We will be reading from 2 Timothy 1:7. अपनी बाइबल आप दूसरा तिमुथियुस 1 और उसकी 7वीं आयत पर खोल ले, हम वो पढ़ेंगे। The Bible says, "For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." और बाइबल यहाँ कहती है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। Now, from this passage, we understand that fear is not just an emotion, but there is a spirit behind that emotion, and that is the spirit of fear. और इस आयत से ये स्पष्ट है कि डर या भय सिर्फ कोई भावना नहीं है, लेकिन उसके पीछे एक आत्मा है जिसकी बाइबल यहाँ पर बात कर रही है। It's a demonic spirit वो दुष्ट की ओर से एक आत्मा है that gives you wrong thoughts, जो आपको गलत विचार देती है, so that you will fear, you will be afraid, you will be constantly thinking that something wrong will happen with you, with your loved ones. ताकि एक व्यक्ति हमेशा डरा रहे या ये चिंतित रहे कि उसके या उसके परिवार के साथ कुछ बुरा होने वाला है या हो सकता है। But in the same way, the Bible says, as fear is a spirit, the Bible says there is another spirit that is God's spirit. लेकिन जैसे भय एक आत्मा है, बाइबल कहती है, वैसे ही एक और आत्मा है जो परमेश्वर का आत्मा है, And that is the source of power. Now, what this spirit does is this spirit empowers us. This spirit releases power into us so that we can function in the power of Almighty God. और वो जो आत्मा है वो सामर्थ्य का बल का आत्मा है, और वो ये करता है, वो आत्मा हमें प्रबल करता है ताकि हम परमेश्वर के मुताबिक उसके इस जीवन को जी सकें। And it empowers us. It also fills our heart with God kind of love. और ये हमें प्रबल करता है और साथ ही साथ हमारे दिल को परमेश्वर के जैसे प्रेम से भर देता है। The Bible says in Romans 5:5, we'll not go there, we don't have time, but I just want you to know that the Bible says that God has shed abroad His love in our hearts रोमी 5:5 through the Holy Spirit. बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे दिलों में भर दिया पवित्र आत्मा के द्वारा। So when the Spirit of God came to live in us, we got the access to God's power, we got access to God kind of love. सो जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आया तो परमेश्वर का बल हमारे अंदर आ गया, हमें प्रबल कर दिया, और परमेश्वर की क्षमता का प्रेम, उसके प्रेम की क्षमता बल्कि हमारे अंदर आ गई। Now many times we have seen this scripture wherein it talks about love and power, but very few times we focus on the sound mind. और अक्सर हम जब बात करते हैं इस आयत की तो हम या तो बात करते हैं उस सामर्थ्य की या फिर उस प्रेम की, लेकिन बहुत कम हम ध्यान देते हैं उस सही बुद्धि या सही मन की जो वचन यहाँ पर कहता है। The same spirit that is the source to power and that is the source to love is the source to the sound mind. क्योंकि वो एक ही आत्मा है जो प्रबल करता है, जो बल लेकर के आता है, जो प्रेम परमेश्वर का हमारे दिलों में उंडेलता है, वो ही आत्मा है जो एक सही मन, एक सही बुद्धि हमें देता है। And this word sound comes from the Greek word sophron, which means a self-controlled mind, a safe mind. और ये जो यूनानी शब्द है सोफ्रोन, उसका अर्थ है
अपने ऊपर संयम रखने वाला आत्मा, अपने ऊपर नियंत्रण रखने वाला आत्मा। A sound mind is a focused mind. एक साउंड माइंड, एक सही मन वो है जो ध्यान केंद्रित है, उसका ध्यान एक जगह पर केंद्रित It is filled with है। thoughts of peace. It is filled with thoughts of joy. It is filled with thoughts of goodwill for others. वो एक ऐसा मन है जिसमें शांति के विचार, आनंद के विचार, दूसरों की भलाई के विचार भरे हैं। It does not devise any wicked plans. वो दुष्टता की योजनाएं नहीं बनाता किसी के विरोध में। You know, as we saw that this spirit gives us access to God's power, this spirit gives us access to God's love. In the same manner, this spirit gives us the access to God's sound mind, God's mind. That means God thinks only what He wants to think. तो इसका अर्थ स्पष्ट है, ये जो आत्मा जो हमारे अंदर आया, उसने परमेश्वर के बल से हमें प्रबल किया, परमेश्वर के प्रेम की क्षमता हमें दे दी, उसके प्रेम को हमारे दिलों में उंडेल कर, और वैसे ही परमेश्वर का मन, उसकी वो सही बुद्धि उसने हमें दे दी ताकि हम परमेश्वर जैसे मन को रख सकें। Amen. आमीन। So think about this. God has a mind. तो इसके बारे में सोचे, परमेश्वर के पास मन है, God thinks. परमेश्वर सोचता है, God has thoughts. उसके पास विचार हैं। Like you and me think, जैसे मैं और आप भी सोचते हैं, God also thinks. परमेश्वर भी सोचता है। In fact, we can think because we are created in the image and likeness of God. यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि हम इसीलिए सोच पाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। You know, God has emotions परमेश्वर के पास भावनाएं हैं, like we have emotions. जैसे हमारे पास भावनाएं हैं। Let's see this passage of scripture from Isaiah 55, हम यशायाह 55 से देखते हैं, and I want your attention. Please read this carefully. Let this go into your heart. और मैं चाहता हूँ आप ध्यान से मुझे सुने, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इस बात को अपने दिल में उतरने देंगे। We will read this passage from verse 8 till verse 12. 8वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक इसको हम पढ़ेंगे। God is saying, और परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं, for my thoughts are not your thoughts, क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार के जैसे नहीं है, nor are your ways my ways, says the Lord. ना ही तुम्हारे रास्ते मेरे रास्ते हैं, परमेश्वर कह रहे हैं। For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. क्योंकि जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं, And my thoughts than your thoughts. और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से ऊंचे हैं। So here in this passage, you know, we see that God also thinks and man also thinks, but there is a great divide between these two kind of thoughts. तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य भी सोचता है और परमेश्वर भी सोचता है, लेकिन एक बहुत फासला है, बहुत बड़ा फासला है इन दोनों तरह के विचारों में। Our thoughts are of much lower category, and he says, my thoughts are much higher. They are much superior. They are much higher. मनुष्यों के विचार बहुत ही निचली श्रेणी के हैं, और परमेश्वर कहता है कि मेरे विचार बहुत ऊंची श्रेणी के हैं। In the same way, he says, hey, your ways, the way you operate is not the way I operate. और परमेश्वर वैसे ही कहता है, जैसे तुम काम करते हो, जैसे तुम उठते बैठते हो, मैं वैसे काम नहीं करता जिंदगी में। The way you think about a situation is not the way I think about a situation. जैसे तुम एक परिस्थिति के बारे में सोचते हो, वैसे मैं नहीं सोचता। For as the rain comes down and the snow from heaven, and do not return there, but water the earth, and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह सफल करेगा। Okay, then I want you to pay close attention to this passage. First, God is talking about his thoughts and his ways, and then he talks about his words. Why? Because our thoughts
become our words. सो ध्यान दीजिए, यहाँ पर परमेश्वर पहले बात कर रहा है मेरे विचार और मेरे मार्गों की, फिर वो बात कर रहा है मेरे वचनों की। क्यों? क्योंकि मेरे जो विचार हैं वही मेरे वचन बन जाएंगे, वही मेरे मुंह से निकल जाएंगे। So what am I trying to convey? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? I'm saying that we can know God's thoughts by His word. मैं ये कह रहा हूँ हम परमेश्वर के विचारों को उसकी बातों, उसके वचन के द्वारा जान सकते So हैं। the first way सबसे पहला to know तरीका God's thoughts परमेश्वर के विचार जानने का is to know God's word. वो है उसके वचन को जानने का। When you know His word, जब आपको उसका वचन पता है, you would know His thoughts, आपको उसके विचार पता होंगे, you would know His ways, उसके रास्ते पता होंगे, you would know His intentions. उस कुछ करने के पीछे उसका क्या चाहत है वो पता होगी। Why? Because क्यों? the scriptures are inspired by the Spirit of living God. क्योंकि जो वचन है वो जीवित आत्मा के द्वारा प्रोत्साहित है। And it's through that inspiration there were holy men of God who wrote it. But Holy Spirit is the source of those scriptures. और प्रोत्साहन के द्वारा ही पवित्र लोगों ने उन वचनों को लिखा, लेकिन उसका जो सोता है वो पवित्र आत्मा स्वयं है। That's why Bible is not a nice motivational stories about men of God. No, the Bible carries the DNA of God because it carries the thoughts and the ways of God. इसीलिए बाइबल को ही अच्छे लोगों के द्वारा लिखी गई प्रोत्साहन की किताब नहीं, लेकिन बाइबल परमेश्वर का गुण, परमेश्वर स्वयं उसकी समानता में है, उसका वचन है। What will happen if we will become familiar with God's thoughts and His word? क्या होगा अगर हम परमेश्वर के विचारों को जान गए और उसके वचन को जान गए? What would happen if we would fill our hearts with God thoughts and with God's word? क्या होगा अगर हमारे हृदय में हमने परमेश्वर के विचारों और उसके वचनों को भर दिया? Next verse says, "For you shall go out with joy अगली आयत कहती है, क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे and be led out with peace. और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। The mountains and the hills shall break forth into singing before you, and all the trees of the field shall clap their hands." तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेंगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। What happens to those people who fill their hearts with God thoughts, with the word of God? क्या होता है उन लोगों के साथ जो अपने विचारों को परमेश्वर के विचारों से और अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से भर लेते हैं? They find joy. वो उनको आनंद मिल जाता है। They start to dwell in joy. वो आनंद में जीने लग जाते हैं। They are led by peace. शांति के द्वारा वो चलाए जाते हैं। So their entire life becomes a celebration. उनकी सारी जिंदगी एक उत्सव बन जाती है। Why? Because they are continuously led by God. क्यों? क्योंकि निरंतर परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा है। Their thoughts are filled with God thoughts. उनके विचार परमेश्वर के विचारों से भरे हुए हैं। His word carries His thoughts. His word carries His DNA. His words carries His life. उसका वचन, उसके विचार, उसके जीवन, उसके प्राण को लेकर चलता है। Amen. Let's go to another scripture, Jeremiah 29:11. हम एक और आयत देखेंगे, यिर्मयाह 29 उसका 11। God says, "For I know the thoughts that I think towards you." और परमेश्वर कह रहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। God knows the thoughts He thinks about us, but do we know the thoughts He thinks towards us? परमेश्वर जो विचार, जो कल्पनाएं हमारे विषय में करता है उनको वो तो जानता है, लेकिन क्या हम जानते हैं? That's why majority of the church, when something evil happens, they don't know if God did it or if the devil did it. इसीलिए अधिकतर कलीसिया को जब कुछ बुरा होता है तो यही नहीं पता होता कि परमेश्वर ने किया है, शैतान ने किया है। And or maybe some people would say that God allowed it. That doesn't mean a thing. और कुछ लोग ऐसा कहते हैं परमेश्वर ने अनुमति दी है, लेकिन इस बात का कोई अर्थ नहीं है असल में। God will allow you to wear a suit of an astronaut and go to moon. और परमेश्वर आपको अनुमति देगा आप एस्ट्रोनॉट का सूट पहनकर मून पर चले जाएं। God will allow you to jump from a 14-story building. What I mean is, He will honor your free will. परमेश्वर आपको अनुमति देगा 14वीं माले से कूदने के लिए। मतलब मेरा कहने का ये है कि परमेश्वर आपकी स्वेच्छा का आदर करता है। Let's read this passage so that our Father, our heavenly Father, never ever thinks
evil in his heart. लेकिन इस आयत को हम जरूर पढ़ेंगे साथ में, क्योंकि मैं चाहता हूं आप जान ले कि हमारा स्वर्गीय पिता कभी भी हमारे विषय में बुरे विचार नहीं सोचता। There was never a time from eternity. You know, even before you were born, even before you were conceived in your mother's womb, do you know that God knew you? जब से सृष्टि की शुरुआत हुई, समय से भी पहले, जब आप अपनी माँ के गर्भ में बनाए भी नहीं गए, उससे भी पहले, क्या आप जानते हैं परमेश्वर आपको जानता था? There was never a time in eternity past when God ever thought a wicked thought or an evil thought about any of his children. और जब से सृष्टि की शुरुआत हुई है, तब से अब तक परमेश्वर ने एक भी बुरा विचार, एक भी दुष्टता का विचार अपनी संतान, अपने बच्चों के लिए नहीं सोचा। For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. क्योंकि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। Thoughts of peace and not of evil. वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, To give you a future and a hope. ताकि मैं अंत में तुम्हारी आशा को पूरा करूं, एक उज्जवल भविष्य दूं। So God's thoughts towards you are thoughts of peace. तो परमेश्वर के विचार जो आपके बारे में वो सोचता है, वो आपके जीवन में शांति लेकर आने के लिए हैं। They are not of evil. वो दुष्टता के नहीं, He wants to give you a future. वो आपको एक उज्जवल भविष्य देना चाहता है, He wants to give you hope. आपको जीवन में आशा देना चाहता है। Amen. आमीन। So if you have ever thought that God planned something evil against your life, he gave a sickness to some of your family member, or you believe that God put you in a bad situation, it's time you repent and you know who your heavenly Father is. तो अगर आपने ऐसा कभी भी सोचा हो कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ बुरा किया, बुरा जो योजना बनाई, या आपके परिवार के किसी जन को बीमारी दी कुछ सिखाने के लिए, तो ये समय है कि अपना मन फिर अपने सोचने के तरीके को आप बदले। God is not into killing business. परमेश्वर प्राण लेने के व्यवसाय में नहीं है, He is into giving life. उसका काम है जीवन देना। He is not into giving sicknesses to people. बीमारियां देना उसका काम नहीं है, He is into healing people from their sicknesses. उसका काम है लोगों को उनकी बीमारियों से चंगा He is करना। not into making people poor. वो गरीब बनाने के काम में नहीं है, He is into lifting people out of their poverty. उसका काम है उनकी गरीबी से उनको बाहर He is निकालना। not into oppressing people, वो लोगों को दबाने के काम नहीं करता, but he is into setting people free from oppression and filling them with his joy. लेकिन उसका काम है लोगों को दबाव से, तनाव से आजाद करके अपने आनंद से भर देना। Amen. So Amen. we know that we can know God's thought as we become as we start to grow in the Word of God, as we start to fill our heart with the Word of God, we will start to know the thoughts of our Heavenly Father. तो जैसे हम परमेश्वर के वचन को अपने दिल में भरते हैं, हम अपने स्वर्गीय पिता के विचारों को जानने लग जाएंगे। The second way is दूसरा तरीका, we know God's thoughts through the Spirit of God. हम परमेश्वर के विचार परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जानते हैं। What I mean by that is, see, there are some things which are very evident in the Word. कुछ बातें हैं वचन में जो बहुत स्पष्ट हैं। It's not evident to all the Christians, but it is evident in the Word. सब मसीहों के लिए नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा वचन में तो बहुत साफ है। Yeah. For example, healing. When we read the scriptures, we know that Jesus heals all. We know that it's God's will to heal every sick person. उदाहरण के लिए जब चंगाई की बात की जाए तो हम देखते हैं यीशु के पास जो कोई आया उसको चंगा किया, तो हम जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि हर कोई चंगा हो। So, whenever we see any sick person, we can instantly know God's thought for that person. If that person is sick, we know that the Father wants this guy to be healed. तो हम जैसे ही देखते हैं कोई बीमार व्यक्ति है, तो हमें पता है परमेश्वर की क्या इच्छा है, पिता चाहता है कि ये व्यक्ति चंगा हो जाए। However, लेकिन when it's about you leaving a country, जब मुद्दा हो आपको एक देश छोड़कर दूसरे देश जाने का, you got a very nice opportunity. आपको मान लीजिए बहुत अच्छा मौका मिला है, Somebody is giving you a green card, blue card, yellow card, whatever cards are there. आपको जिस भी तरह का न्योता, जिस भी तरह का कार्ड मिल रहा है उस देश जाने के लिए, And you are so excited because everything looks so beautiful. और आप बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं क्योंकि सब कुछ बहुत सुहावना लग रहा है। But we should know that we have access to God's mind. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास परमेश्वर के विचारों को जानने की क्षमता है। Believers shouldn't be impulsive in taking decisions. विश्वासी लोगों को Yeah. जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने चाहिए। Only we should be quick when we know God has said something, then you quickly obey. सिर्फ तब जल्दीबाजी करें जब आपको पक्का पता है परमेश्वर क्या चाहता है, उसने क्या कहा है। But when you are just seeing opportunities and you want to go out
to another country, or you want to marry someone, or you are doing, there is a big decision that you have to take which will change your future, I would say that a wise thing would be to inquire the Lord about that thing. लेकिन जब आप जीवन में अलग अलग बातों के लिए अवसरों को तलाश रहे हैं, किसी और देश जाना चाहते हैं, किसी से विवाह करना चाहते हैं, कोई बड़ा निर्णय लेना है, तो मैं कहूँगा बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के सामने उस प्रस्ताव को रखें, उससे उसकी राय लें. Just don't judge things depending on your five senses. आप बातों का निर्णय, आप चीज़ों का निर्णय अपने ज्ञान, अपने अनुभवों के मुताबिक ना करें, Because our understanding is limited. क्योंकि हमारी समझ सीमित है. There are so many things that we do not know. बहुत सारी बातें हैं जो हम नहीं समझते, But we have a great privilege. लेकिन एक बहुत बड़ा सौभाग्य है We हम have सबका. access to God's mind. परमेश्वर के मन की बातों को जानने की See, क्षमता हमारे पास है. God's word tells us His generic will for everyone. परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर की जो सरल इच्छा है सब लोगों के लिए वो बताता है. But there is no chapter about Ankit in the Bible. लेकिन बाइबल में अंकित या आपके नाम का कोई अध्याय नहीं है. There is no chapter of Samarth in the Bible. सामर्थ नाम का कोई अध्याय नहीं है. So how should I know which way is God leading me? What does God want me to do? तो मुझे कैसे मालूम होगा कि परमेश्वर खासकर मेरे जीवन के लिए क्या मार्ग निकाल कर मुझे बताना चाहता है, कहाँ मुझे ले जाना चाहता है. For that, उसके लिए we grow in fellowship with the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के साथ रिश्ते में और सहभागिता में बढ़ते हैं. Let's see this passage. 1 Corinthians 2:11. पहला कुरिन्थियों 2 उसका 11 हम देखते हैं साथ. No one can know a person's thought. I'm reading from NLT version. No one can know a person's thoughts except that person's own spirit. और पास्टर एनएलटी से पढ़ने में उसका अनुवाद कर देता हूँ. एक व्यक्ति स्वयं को छोड़ उसके विचारों को और कोई नहीं जानता. And no one can know God's thoughts except God's own spirit. और परमेश्वर के विचारों को परमेश्वर स्वयं के आत्मा के अलावा कोई नहीं जान सकता. Okay? So Bible is saying, hey, if you meet me, तो बाइबल ये कह रही है अगर आप मुझसे मिलोगे, for example, you meet me, उदाहरण के लिए आप मुझसे मिले, you can hear what I'm saying, आप वो सुन सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, but you will not have access to my thoughts. लेकिन आप मेरे विचारों को नहीं जान पाएंगे. You as a different individual do not have access to my thoughts. एक अलग व्यक्ति होने के कारण आप मेरे विचारों को नहीं जानते. The Bible is saying only a person knows his own thoughts. बाइबल कहती है एक मनुष्य स्वयं ही अपने विचारों को जानता है. Only his spirit knows the thoughts. केवल उस मनुष्य का आत्मा ही जानता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है. In the same way, वैसे ही nobody knows God's thoughts. कोई भी परमेश्वर के विचारों को नहीं जानता. Let's see verse 16 in the same chapter. इसी अध्याय की 16वीं आयत देखते हैं. For who can know the Lord's thoughts? Who knows enough to teach him? क्योंकि कौन परमेश्वर के विचारों को जानता है, किसको इतना आता है कि वो परमेश्वर को सिखा पाए. We understand these things. लेकिन हम इन बातों को समझते हैं. Hallelujah. The Bible Hallelujah. is saying that who can know God's thoughts, but we understand these things. We know God's thoughts. Why? For we have the mind of Christ. और बाइबल कह रही है कौन परमेश्वर के विचारों को जानता है, हम जानते हैं, हम समझते हैं उसके विचारों को, क्योंकि हमें उसका मन, उसकी बुद्धि समझ दी गई है. We have the access to the mind of God. परमेश्वर के मन के विचारों को जानने की क्षमता हमें दी गई है. See, the first way to know the ways of God, to know God's heart, is through His Word. जो पहला तरीका है परमेश्वर के विचारों को जानने का, वो है उसके वचन के द्वारा. When you read the Word of God, you would know the will of God for entire humanity. You would know the will of God. What does God want? Mankind to getting salvation, getting healed, people prospering. We would know the generic will of God for everyone. जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप परमेश्वर की जो इच्छा मनुष्य जाति के लिए है, एक पूरी मनुष्य जाति के लिए, वो जान लेंगे कि परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, हर कोई उद्धार पाए, हर एक चंगा हो, हर एक समृद्ध हो. ये उसके विचार पूरी मनुष्य जाति के लिए हैं. But in the scripture there is no chapter about my life. I do not know if I should take that job. I do not know if I should marry this person. I do not know if I'm taking a big decision. I do not know what I should do. What is my heavenly Father thinking about that situation? लेकिन क्योंकि बाइबल में मेरे नाम का कोई अध्याय नहीं है, खासकर मेरे जीवन के लिए परमेश्वर क्या चाहता है वो उसमें नहीं लिखा है, तो मैं वो कैसे जानूं कि मुझे किस नौकरी को करना है, किस व्यक्ति से शादी करनी है, कौन सा बड़ा निर्णय कैसे लेना है,